हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड सिविल। इसमें हम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये सॉइल मैकेनिक्स की सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अ सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35%, shrinkage limit of 20% and the natural water content of 50%. The liquidity index of the soil is. So सबसे पहले हम देखेंगे कि liquidity index होता क्या है. So it is the ratio of W minus PL to the LL minus PL, where W is the natural moisture content, PL is the plastic limit, LL is the liquid limit. लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है दैट शोज द सॉफ्टनेस ऑफ द सॉइल, कि जो हमारा सॉइल है उसकी रिलेटिव कंसिस्टेंसी कितनी होगी कोहेसिव सॉइल की, ठीक है, कितना इजीली वो दूसरी शेप में मोल्ड हो सकता है। एंड इट इज ऑल्सो अ चेक ऑफ द इन सिटू सॉइल, और बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स हमें पता चलता है कि सॉइल कैसा बिहेव करेगी। इफ liquidity index is less than 0, then it will behave as a brittle material, and if the liquidity index value lies in the range of 0 to 1, then it will behave as a plastic, and if it is greater than 1, then it will be behaving like a liquid। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें आपको रटनी नहीं है, ठीक है। those can be inferred from this formula। देखो, अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम होगी, दैट मीन्स आवर नेचुरल वाटर कंटेंट वुड बी लेस देन लिक्विड लिमिट और अदर प्लास्टिक लिमिट। सो प्लास्टिक लिमिट से जो नीचे की सॉइल होंगी दोज विल बी हार्ड सॉइल। देन इफ इट इज इन बिटवीन 0 and 1, then that means our water content would be greater than plastic limit but less than liquid limit. So between plastic limit and liquid limit, the soil is in the plastic state, and if liquidity index is greater than 1, that means our water content would be greater than liquid limit. So in that region the soil will behave as a liquid. Now coming back to the question, putting all the values in the formula, we will get liquidity index as natural water content, that was 50, minus plastic limit, that is 35, divided by liquid limit minus plastic limit, we would get as 15 divided by 25, which is equal to 0.6. So the correct option for question number 11 is option number C. Moving on to next question, question number 12. Consider the following statements in relation to the given table। तो हमें यहाँ टेबल में डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट, ठीक है। सो एज पर द फेज डायग्राम, जो सॉइल सैंपल होगा इसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी, सॉइल सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। अब हमें जो वेट दिया हुआ है, सॉइल सॉलिड्स का वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, वाटर का वेट दिया हुआ है 0.3 ग्राम, एंड क्योंकि एयर का कोई वेट नहीं होता है, दैट इज बीन गिवन एज 0। सो द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज 1 ग्राम, वेट ऑफ वाटर इज 0.3, देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज 0.5 cc by solids, 0.3 by water and 0.2 by air। so that is 0.5, then 0.3, then 0.2. Now looking at the option number 1, soil is partially saturated at the degree of saturation is equal to 60%. Now what is the degree of saturation? Degree of saturation is represented by S, which is equal to volume of water per unit volume of voids. So volume of water is given as 0.3, and volume of voids is the volume of water, that is 0.3, plus volume of air, so that is equal to 0.5.
So that means the degree of saturation is 0.6 or 60%. So that means the first statement is correct. Now looking at the option C में जो है हमारा पहला statement नहीं है, that means this option would be incorrect. So we can eliminate this option by this method. Now looking at the second statement, that is void ratio. Void ratio क्या होता है? That is the volume of voids to the volume of solids. Now volume of void is 0.3 plus 0.2. जो water plus air का volume होगा, that is the volume of voids, that is 0.5, and the volume of solid is 0.5. So that means the void ratio will be equal to 1.0. But question में जो हमें दिया हुआ है, that is 40%, that is 0.4. That means our second statement is wrong. Now looking at all the options in which second option is coming, so this one is also wrong, D is also wrong, and A is also wrong. So that means we are left with only correct option, that is option number B. So दो ऑप्शन, सिर्फ दो स्टेटमेंट को पढ़कर भी आप ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. बट लुकिंग एट द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट बता रहा है हमें वाटर कंटेंट के बारे में. सो वाटर कंटेंट इज weight of water to the weight of solids. Now weight of water is 0.3 gram divided by weight of solid, that is 1 gram. So that is equal to 0.3 or 30%. So third statement is correct. Then last statement is saturated unit weight. Now if the soil is saturated, that means this remaining portion which has been occupied by air will also be occupied by the water. Now if the water is occupying this much volume, that is 0.2 cc, so the corresponding weight of this volume will be also be equal to 0.2, क्योंकि हमें ये बताया हुआ है कि जो वॉल्यूम है वाटर का that was initially 0.3 और जो उसका वेट था that was also 0.3. so that means 0.3 के corresponding 0.3 ही वैल्यू मिल रही थी. तो अगर अब सॉइल में वाटर ने जो है 0.2 cc वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, सो corresponding वेट और जो मास होगा वाटर का that will also be 0.2. so that means the total weight of the soil will be equal to 1 plus 0.3 plus 0.2 divided by the total volume is this much, that is 0.5 plus 0.3 plus 0.2, 0.5 plus 0.3 plus 0.2. so that is equal to 1.5 divided by 1. Now since it is a saturated soil, so the density would be corresponding to saturated condition, so that is gamma set, so that would be equal to 1.5 gram per cc. So looking at the statement, that was given as 1.5 gram per cc. So the correct option is 1, 3 and 4, which is in the option number B. Then moving on to question number 13. Consider the following statements in context of A-line soil. ठीक है, A-line soil के बारे में बताया था मैंने. ठीक है, जितने भी soil mass होते हैं, ठीक है, those are obtained from the rocks. तो initially क्या होता है, rock की weathering होती है. weathering के बाद जो soil mass होगा, that will be deposited at a certain place. और अगर वो जो soil mass है, if that is being transported to some other place, then that is known as transported soil. और अगर वो वहीं पर ही जमा होता जाएगा, then that will be known as residual soil. अब based on different transporting agency हम soil को classify करते हैं, and A-line soils are the ones जिनको transport किया जाता है by wind. So when wind is carrying different soil samples, different soil mass, so initially अगर वो इस shape में है, so continuously weathering होगी उसकी भी, so जो soil mass है that will be decreasing in its volume. So जब
ये किसी भी प्लेस पर इसको डिपॉजिट करता रहेगा, सो वहाँ पर जो होगा दैट विल बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो सॉइल मास होगा दैट विल बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ वॉइड्स, जिसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी जो होगी दैट विल बी वेरी हाई एंड कंप्रेसिबिलिटी विल ऑल्सो बी वेरी हाई। बट क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास ऑक्यूपाई कर रहा है, सो दैट्स वाई इसकी जो डेंसिटी होगी दैट विल बी लेसर। नाउ एज पर द क्वेश्चन, एओलाइन सॉइल्स, these are the soils which are deposited by wind, that is the most basic statement, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि that would be definitely correct, so removing all the options in which second statement is not given, so that is C को हम remove कर सकते हैं easily। now all the rest of the options are having option or statement 2। now looking at third option, the soil has large permeability, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सॉइल सैंपल होगा वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैरी करेगा, सो इसकी वजह से इसकी परमेबिलिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। सो दैट मीन्स कि ऑप्शन 3 जो स्टेटमेंट 3 है वो भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी में हमें स्टेटमेंट 3 नहीं दिया हुआ है, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ लुकिंग एट द ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1, द सॉइल हैज़ लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि सॉइल जो है लार्ज वॉल्यूम में कम मास को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो दैट्स वाई इसकी डेंसिटी जो होगी वो बहुत लो होगी। पर क्योंकि इसमें वॉइड बहुत ज़्यादा हैं तो कंप्रेसिबिलिटी इसकी हाई होगी, ना कि लो। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड देयरफॉर रिमूविंग ऑप्शन ए वी वुड गेट द करेक्ट ऑप्शन एज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, the dry density of a soil is 1.5 gram per cc. If the saturation water content were 50%, then its saturated density and submerged density would respectively be. So जो गामा का फॉर्मूला होता है that is गामा डी का, that is गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है, जहाँ पर गामा टी जो है हमारा that is a total और बल्क डेंसिटी को डिनोट करता है, ठीक है, एंड डब्ल्यू इज डिनोटिंग द वाटर कंटेंट। बट अगर जो सॉइल सैंपल है दैट वुड बी सेचुरेटेड, सो जो हमारा गामा सेट होगा दैट विल बी कमिंग इन प्लेस ऑफ गामा टी, और जो वाटर कंटेंट होगा दैट वुड बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेचुरेशन स्टेट। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट गामा सेट इज इक्वल टू गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। नाउ गामा डी इज 1.5 and water content is given as 50%, that is 0.5. so 1.5 into 1.5 we will get gamma set as 2.25 gram per cc. that means ये सिर्फ इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्योंकि 2.25 ग्राम पर cc एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, so that means the correct option is option number C। बट सबमर्ज डेंसिटी को भी निकालते हैं, ठीक है। सबमर्ज डेंसिटी इज सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस गामा डब्ल्यू, एंड सैचुरेटेड डेंसिटी इज 2.25 माइनस द गामा ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, so that means submerged density would be 1.25 gram per cc, so that means option C is correct। Moving on to question number 15, the moisture content of a clayey soil is gradually decreased from a large value. What will be the correct sequence of the occurrence of the following limits? ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट इसके थ्रू हम अपने डिफरेंट जो अटरबर्ग लिमिट्स होती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब हम सॉइल सैंपल में वाटर कंटेंट को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, वेटिंग कंडीशन है ये राइट साइड में अगर हम मूव करते हैं, सो अप टू अ सर्टेन लिमिट देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। बट अगर हम एक लिमिट दैट इज़ नोन एज श्रिंकेज लिमिट को क्रॉस कर जाएं, तो उसके बाद जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते जाते हैं, जो सॉइल सैंपल का वॉल्यूम है दैट आल्सो इंक्रीजेस, और जो हमारी नेक्स्ट लिमिट आती है, ठीक है, जहाँ तक हमारा सॉइल जो है एज अ सेमी सॉलिड बिहेव करता है, दैट लिमिट इज़ नोन एज प्लास्टिक लिमिट। और अगर हम उसके बाद भी वाटर को इंक्रीज करते जाएं, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते जाएं, सो
there will be a condition जिसके बाद जो soil है हमारा that will behave or flow will be flowing like a liquid, and that limit is known as liquid limit. So if we are moving in the backward direction, so first of all will be at the liquid limit, then plastic limit, then shrinkage limit. So correct order would be, क्योंकि हम यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम को ग्रेजुअली, सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑर्डर वुड बी, सबसे पहले हमें लिक्विड लिमिट मिलेगी दैट इज 3, देन प्लास्टिक लिमिट दैट इज 2, देन श्रिंकेज लिमिट 3, 2, 1. So the correct option for this question would be option number C. Moving on to next question, question number 16. A fill having a volume of 1,50,000 cubic meter is to be constructed at a void ratio of 0.8. The borrow pit soil has a void ratio of 1.4. The volume of soil required in cubic meters to be excavated from the borrow pit will be. So ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन या गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है, और बाकी भी जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं उन सब में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. सो इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड रिमेन कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पर आप वाटर को अगर सॉइल में वाटर इंक्रीज करते जाएं सो देन इट विल बी फुली सेचुरेटेड, तो एयर का वॉल्यूम जो होगा वो 0 हो जाएगा. और अगर आप इसको ओवन ड्राई करते हैं तो वाटर कम्प्लीटली उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, तो वो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम होगा वॉइड्स का दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय एयर. बट जो सॉलिड का वॉल्यूम है दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है. सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होता है. सो जैसे कि हम जानते हैं दैट वॉइड रेशियो इज volume of voids to the volume of solids. Now adding 1 on both side we will get 1 plus E is equal to VV upon VS plus 1. Now we will get VV plus VS, that is volume of void plus volume of solids divided by volume of solid. Now volume of voids plus volume of solid is the total volume, and volume of solids is given as VS 1 plus E. So that means अगर इसको हम आगे लेकर जाएं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई. नाउ यूजिंग दिस फार्मूला वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरो पिट. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा दैट विल बी कॉन्स्टेंट, सो दैट मीन्स V अपॉन 1 प्लस ई ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू V अपॉन 1 प्लस E ऑफ फिल और पिट, ठीक है. सो टोटल वॉल्यूम जो एक्सकेवेट किया है हमने, जो फिल करना है हमें, ठीक है, दैट इज 1,50,000 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय द वॉइड रेशियो इज 0.8. सो 1 प्लस 0.8 इज 1.8. द टोटल वॉल्यूम टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द पिट is to be found out, and that is working at a void ratio of 1.4. So that means 1 plus 1.4 will be equal to 2.4. Solving it we will get V as 2 lakh cubic meter. So that means the correct option for this question would be option number B. Moving on to question number 17. Given that plasticity index of local soil is 15 and plasticity index of sand is 0, for a desired plasticity index of 6, the percentage of sand in the mix should be. ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो सैंड का परसेंटेज है दैट इज x परसेंटेज जो है दैट इज ऑफ द सैंड, so 100 minus x जो परसेंटेज होगा that will be of local soil. So now x into the plasticity index of local soil is 15 and of sand is 0, so x into 0 plus 100 minus x into 15 divided by जो हमें टोटल चाहिए plasticity index
that will be x plus 100 minus x is equal to 6. So x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. We will get 1500 minus 15x is equal to 600. Now 15x would be equal to 900. So x would be equal to 60. So that means the percentage of sand in the mix would be 60%. That means option B would be correct option. Now moving on to question number 18. A clay soil has liquid limit as WL, plastic limit as WP and natural moisture content as W. The consistency index of the soil is given by. Consistency index का जो फॉर्मूला होता है that is WL minus W divided by WL minus WP. ठीक है, जहाँ पर WL जो होगा that is the liquid limit, W is the natural moisture content and WP is the plastic limit. और IC जो होता है that is the consistency index जो होता है that shows the firmness or stiffness of the soil, or it is used to study the in situ behavior of saturated fine grained soil at natural water content. जैसे कि हमने liquidity index में पढ़ा था कि वो जो था that was showing the softness of the soil. तो consistency index जो होता है that shows the firmness of the soil or stiffness of the soil. तो ideally हमें IC that is the consistency index को increase करना होता है और जो liquidity index होता है उसको reduce करना होता है. उस तरह का soil sample हमको बनाना होता है. Now क्वेश्चन में हमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला है WL minus W upon W minus WP. So the correct option for 18th question would be option number A. Moving on to question number 19. और यहाँ पर कुछ कंडीशन दिखाई हुई है आपको सॉइल कंसिस्टेंसी की. ठीक है, कि अगर आपका जो सॉइल है दैट इज़ इन द लूज स्टेट तो बहुत इजीली वो ब्रेक हो जाएगा. अगर फ्राइबल फॉर्म में है, ये बहुत टर्म यूज़ होता है. ठीक है, सेंसिटिविटी या फिर अलग अलग टॉपिक्स में यूज़ करते हैं हम इसको, कि अगर बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रेशर के साथ ही आपका सॉइल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज फ्राइबल सॉइल. और अगर जो आपका प्रेशर है दैट इज़ टू बी अप्लाइड इन द लार्जर क्वांटिटी देन दैट इज़ नोन एज फर्म सॉइल. और अगर वो हम हाथ से क्रश नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें हैमर की ज़रूरत पड़ेगी, देन दैट इज़ नोन एज एक्सट्रीमली फर्म सॉइल. क्वेश्चन नंबर 19. A soil has mass unit weight gamma, water content W. The specific gravity of soil solid is G and the unit weight of water is gamma W. And S is the degree of saturation of the soil that is given by. तो इस क्वेश्चन में हम दो बेसिक फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे. ठीक है, जो कि ऐसे है कि गामा इज इक्वल टू G प्लस ES इंटू गामा W अपॉन 1 plus E, and the second formula is ES is equal to G into W. हम इस फॉर्मूले को यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें कहीं पर भी हमें जो वैल्यू है वो E की टर्म्स में नहीं दी हुई है. सो हम यहाँ से E की जो वैल्यू हो इसको रिप्लेस करेंगे गामा के फॉर्मूले में. सो रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ E वी विल गेट गामा इज इक्वल टू G प्लस WG into gamma W upon 1 plus WG upon S. Now 1 plus WG upon S will be equal to, अगर यहाँ से G कॉमन ले लें, that will be equal to G into 1 plus W into gamma W upon gamma. Now dividing both side by G, ये G कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, वी विल गेट 1 अपॉन G प्लस W अपॉन S इज इक्वल टू 1 प्लस W इंटू गामा W अपॉन गामा. Now W upon S will be equal to 1 plus W into gamma W upon gamma minus 1 upon G. Now we need to find out the value of saturation, degree of saturation, that is S.
सो एस की वैल्यू हो जाएगी एज W डिवाइडेड बाय 1 प्लस W इंटू गामा W अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन G. So that is a desired expression. ठीक है. So looking at the option, W upon 1 plus W upon 1 plus W, that is option B is correct. That is W upon gamma W upon gamma into 1 plus W minus 1 upon G. ठीक है, जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है करेक्टली. So the correct option for question number 19 would be option B. Moving on to the last question of this video. Question number 20. If an unconfined compressive strength of 4 kg per square centimeter in the natural state of clay reduces by 4 times in the remolded state, then its sensitivity will be. तो sensitivity जो होता है, that is a parameter which shows the degree of disturbance achieved on remolding. कि मतलब अगर हमने किसी भी सॉइल सैंपल को डिस्टर्ब किया तो उसमें कितना शेयर स्ट्रेंथ का लॉस होगा, दैट इज शोन बाय सेंसिटिविटी, जिसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं एज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रिमोल्डेड सॉइल. सो क्योंकि नेचुरली जो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल होगा उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और रिमोल्डिंग के बाद उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी. सो दैट मीन्स जो मोस्टली एसटी की वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1, बट किसी केस में इट कैन ऑल्सो बी लेस देन 1, और वो केस होगा जब आपका अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है, दैट इज़ जो नेचुरली अवेलेबल सॉइल सैंपल है उसमें जो नंबर ऑफ वॉइड्स हैं या फिर अरेंजमेंट है जो मॉलिक्यूल्स का वो इम्प्रूव होगा ऑन रीमोल्डिंग. तो उससे क्या होगा कि उसकी पैकिंग जो होगी वो बहुत क्लोज हो जाएगी, और उसकी वजह से सपोज अगर आपका कुछ सॉइल सैंपल है दैट इज़ बीइंग इन द शेप लाइक दिस, अगर ये इस शेप में है और आफ्टर रीमोल्डिंग इट गेट्स इन द बेटर पैकिंग शेप, सो दैट मीन्स अगर अब आप इस पर लोड अप्लाई करेंगे सो इट विल बी रेजिस्टिंग मोर लोड, सो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी. सो डिनोमिनेटर इंक्रीज़ कर जाएगा, सो उसकी वजह से जो एस टी होगा आपका दैट विल बी लेस देन 1. तो इस तरह का जो एग्जांपल होता है दैट इज़ फिशर्स क्ले. ठीक है, जिन क्ले सॉइल्स में जो क्रैक्स अवेलेबल होते हैं वो रिमोल्डिंग के बाद आपके फिल हो जाएंगे. सो उस केसेस में सेंसिटिविटी की वैल्यू कैन ऑल्सो बी लेस देन 1. अब क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी हुई है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट मतलब कि जो उसकी अनडिस्टर्ब्ड स्टेट है, सो दैट मीन्स QU ऑफ अनडिस्टर्ब्ड इज 4 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और रिमोल्डिंग स्टेट में जो उसकी स्ट्रेंथ है दैट इज रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स. सो दैट मीन्स अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ in remolding state is reduced by 4 times. So that means that will be equal to 1 kg per square centimeter. Now the sensitivity का जो formula है that is equal to unconfined compressive strength of undisturbed soil sample that is 4 to the unconfined compressive strength of the remolded sample that is 1. So sensitivity would be equal to 4 for this question. So that means our soil will be of normal sensitivity, normal or sensitive type. So the correct option for question number 20 would be option C. So ये वीडियो इस तरह की वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को डिकोड सिविल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.